there is a pan chocolate. Pan chocolate. Pan chocolate. Another one is a dates chocolate. If I am supposed to leave at 2 o'clock, मैं exact 2 o'clock निकल जाऊंगी. I will never take that extra 5 minutes just to show off to someone else कि oh see I am working here या मैं बहुत अच्छी employee हूँ. So I used to come back from school and मेरे जितने भी toys, dolls और teddy bears थे मैं उनको सब सामने रखती थी. And I used to teach them whatever मुझे स्कूल में पढ़ाया जाता. And it's fine. अगर आपको लेट हो रहा है कुछ करने में, अगर आपको अपना exactly आपको कहाँ पे खुशी हो रही है वो चीज ढूंढने में आपको टाइम लग रहा है, आप टाइम लो. Is there any possible way I could have known? No. Oh my God. Hello everyone, welcome to Insightful Talks with Kunal Newar. आज का जो एपिसोड है उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आज के एपिसोड में हम लोग कवर करने वाले हैं वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट थिंग्स एंड आई एम श्योर इट मस्ट बी योर फेवरेट एज वेल, चॉकलेट्स. आज हमारे साथ है एक सीए टर्न टीचर एंड ऑल्सो अ कैंडी मेकर. आज हमारे साथ है श्वेता रॉय देवनाथ. Hello Shweta, how are you? Hello Kunal. Thank you so much for taking your time and joining us here. Thank you for having me here. Wonderful, wonderful. Shweta, before we discuss chocolates, which I'm very excited about, एक छोटा सा मैं आपको एक चीज मतलब एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ because you know I'm a mentalist, right? Yes. तो एक एक्सपेरिमेंट से शुरू करते हैं, just kind of an ice breaker, ठीक है? तो मेरे पास एक ग्लास है, इसके अंदर बहुत सारे पेपर है, ठीक है, और हर एक पेपर में कुछ लिखा हुआ है. So I'm just going to give it a shake, but before that I'm going to give you a gift for participating in this. Thank you. ठीक है, उसको रखो अपने साथ and I'm going to give this a shake. ठीक है, just tell me when to stop. ठीक है, Stop. Right here. Okay. So hold out your hand. I'm going to एक गिर गया नीचे. Okay, I'm going to give you one of the papers. Okay. Now इसके अंदर अलग अलग सेलिब्रिटीज के नाम लिखे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं सबको निकाल लेता हूं. अगर आप ये वाला निकालते तो आपको मिलता, क्या लिखा हुआ है इसमें देखना, अजय देवगन. अजय देवगन, राइट. एक जमीन पे गिर गया था. तो अगर आप ये वाला लेते, ठीक है, तो इसमें आपको मिलता, लेट मी सी, आलिया भट्ट. एंड जस्ट लाइक दैट यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज का नाम लिखा हुआ है. आपने स्टॉप बोला एंड एक चीट आपके हाथ में आके गिरा. लेट्स सी व्हाट दैट सेलिब्रिटी इज. एंड कैन यू टेल एवरीवन व्हाट दैट सेलिब्रिटी इज? अक्षय कुमार. अक्षय कुमार. इज देयर एनी पॉसिबल वे आई कुड हैव नोन कि अक्षय कुमार आपके हाथ में लैंड होने वाला? नो. यहाँ पे 20-25 सेलिब्रिटीज के नाम लिखे हुए, राइट? बट दिस इज क्रेजी. ये दिखाने से पहले मैंने आपको एक चॉकलेट दिया as a gift for participating in this, right? I want you to open that chocolate. और openly open कीजिए, सबको दिखा. Open that chocolate. उसके अंदर एक स्पेशल गिफ्ट है आपके लिए. And it's a seal pack. आप पहली बार खोल रहे हो, right? Yes. You're opening for the very first time. And what was inside it? It's a paper. Oh my God. अक्षय कुमार. How crazy is that? It is. एकदम बंद था. I mean. आपने खोला है पहली बार. अक्षय कुमार. Amazing, amazing. And आप रख सकते हो अक्षय कुमार का फोटो और the chocolate. Okay, Thank this you. gift for you for participating in this act. Now, first of all, Shweta, can you tell us a bit about yourself? Like from your childhood days, what kind of a person were you? कैसे थे आप? शरारती थे या कैसे थे मतलब? वैसे तो मतलब चाइल्डहुड मेरा इलाहाबाद में बीता है. Yeah. So it's renamed as प्रयागराज now. And शरारती नहीं थी, शांत भी नहीं थी. Okay. I was a chatterbox. Oh wow. I was a chatterbox. मतलब कुछ लोग जानते थे, बोलते थे मुझे कि इसको बस बैठा लो और ये बकबक करना स्टार्ट कर देगी. Okay. So I was very like I needed random topics to talk. मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता था. So I was very extrovert since childhood. So I was very like chubby,
bubbly, and that kind of a girl. Okay, so is it one of the reasons why you are into this teaching line जहाँ पे बहुत you have to be expressive, you have to talk with students? हाँ, मतलब अभी if I relate that हम्म to my present times, क्योंकि मैंने मम्मी पापा से सुना है कि when I was very small, हम्म मतलब एकदम शायद फर्स्ट सेकंड में रही होगी हम्म या मे बी उससे भी पहले. हम्म सो आई यूज टू कम बैक फ्रॉम स्कूल okay एंड मेरे जितने भी टॉयज, डॉल्स और टेडी बेयर्स थे, मैं उनको सब सामने रखती थी एंड आई यूज टू टीच देम वॉट एवर मुझे स्कूल में पढ़ाया जाता था. तो एक तरह से आपका प्रैक्टिस भी हो जाता, होमवर्क हो हाँ, जाता. सो मुझे मतलब मम्मी पापा से सुना है कि दिस इज समथिंग दैट आई यूज टू डू राइट आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल. सो वो चीज ना मुझ में बहुत पहले से था, तो मुझे कोई भी चीज ना एक्सप्लेन करना बहुत अच्छा लगता था. तो Okay. मैं खुद भी अगर पढ़ती थी हम्म तो मैं बहुत समझ के पढ़ती थी एंड आई यूज टू लाइक रिपीट इट इन सच अ वे एज इफ आई एम टीचिंग समवन. Oh, that's wonderful. मतलब बचपन से ही मतलब टीचिंग का. बचपन से ही टीचिंग वाज देयर, लाइक चाहे पढ़ाई में हो चाहे डांस में हो, यू नो, आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ स्टेज शोज एंड मुझे ना उन सब चीजों में बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, तो मैं समझाती बहुत अच्छा थी. वंडरफुल वंडरफुल. तो अभी इफ आई रिलेट दैट थिंग, ऑफ कोर्स. तो अभी मुझे लगता है कि तो दिस वाज बचपन से ही डेस्टिन्ड टू वो एक हैपन. ट्रेट रहा होगा आपको टीचिंग करने का. सो यू स्टार्टेड योर करियर एज अ सीए. कैन यू जस्ट टेल अस द जर्नी, मतलब कैसा था सीए? आप सीए से स्टार्ट किया आपने, उसके बाद यू वेंट फॉर टीचिंग व्हिच वाज योर, जैसे कि आपने बताया, चाइल्डहुड इंटरेस्ट. तो कैसा था ट्रांजिशन, मतलब व्हाट वाज द रीजन? रीजंस एक्चुअली बहुत थे. बेसिकली आई वाज वेरी कंफ्यूज एंड कमिंग टू सीए, बचपन से मेरा सीए बनने का कोई भी इंटेंशन नहीं था. मुझे पता भी नहीं था व्हाट इज सीए. सो फॉर एवरीवन व्हाट इज सीए? एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट. चार्टर्ड अकाउंटेंट. ठीक, प्लीज कंटिन्यू. नाउ मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि मैं बड़ी होके ये बनूंगी वो बनूंगी. फ्रॉम ऑल माय रिलेटिव्स, यू नो, सब, यू नो, दे कीप आस्किंग कि नॉट इवन रिलेटिव्स, मैं बोलूंगी क्लास में भी कभी टीचर्स पूछते थे व्हाट यू वांट टू बिकम इन लाइफ. तो सब बोलते थे इंजीनियर, डॉक्टर, तो वो सुन के मैं भी कुछ बोल देती थी. तो था कि हाँ, आइदर इंजीनियर नहीं तो डॉक्टर. ओके. सो सिंस द मोस्ट कॉमनली चोजन वेरी प्रोफेशन. कॉमन. एंड देन ये था कि मुझे बायो थोड़ा ज्यादा पसंद था, तो क्लास 6-7 तक आई हैड सो मच इंटरेस्ट इन बायो कि मुझे डॉक्टर बनना था. नाउ 6-7 तक डॉक्टर थोड़ा सा शायद पीछे छूट गया था. फिर सब इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो मुझे इंजीनियरिंग करना था. मतलब क्योंकि एवरीवन वाज देयर, मतलब गो बोल विद रहे द थे. फ्लो. हाँ, गो विद द फ्लो, जो सब करते हैं. हाँ, बेसिकली मैंने कुछ सोचा नहीं था मुझे क्या करना है. देन आई वाज इनटू सिंगिंग, आई वाज इनटू डांसिंग, क्योंकि मेरे घर में, मेरे इमीडिएट फैमिली में, माय मदर इज अ सिंगर, माय फादर ही इज अ जर्नलिस्ट, ही इज एन एस्ट्रोलॉजर, बट वो उनको भी लिखने का बहुत शौक था. सो ही वाज एन एडिटर इन वन ऑफ द वेरी बिग पत्रिकाज इन कोलकाता. सो वहां से मतलब आई हैव बीन इनटू अ फैमिली जहाँ पे कल्चर बहुत ज्यादा था. म्यूजिक, डांस, रेसिटेशन, राइटिंग, सो वो सब भी मैं करती थी. करती थी बट एज अ हॉबी. कभी ये नहीं सोचा था कि इनको लेके भी आगे बढ़ सकते हैं. ऑल्दो नाउ आई रिग्रेट कि मैंने क्यों नहीं किया कंटिन्यू, बट हाँ, दैट वाज देयर. नाउ बाय 8th का लास्ट मेरा साइंस से मन उठने लगा था. मुझे साइंस पढ़ना नहीं अच्छा लग रहा था एंड मैं ये चीज घर पे बता भी नहीं पा रही थी, बिकॉज for them I was a good student. I was not one of the toppers, I was never one of the toppers, but हाँ, मतलब more than average. I was a good student. तो 9th में as usual I got science, and then science पढ़ाई करते 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 मुझे physics chemistry में एकदम इंटरेस्ट चला गया. then 10th मैंने किसी तरह किया है. 11th 12th में when I got science by default तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था एंड मैं किसी को बोल भी नहीं पा रही थी कि मुझे नहीं पढ़ना है साइंस. सो कुछ टीचर्स से बात करके आई गॉट टू नो अबाउट सीए.
तो मुझे लगा कि ये कुछ तो है, थोड़ा सा हैवी, अच्छा खासा सुनने में अच्छा लग रहा है सुनने में अच्छा लग रहा है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड इट्स लाइक उसमें मैथ्स लेना पड़ेगा। आई थॉट चलो ठीक है, मैथ्स है, ठीक है, ले लेते हैं, कॉमर्स विद मैथ्स लेके आई वेंट अहेड। सो सीए सीए बनना है, वो भी 12th के बाद डिसाइड हुआ, बिकॉज बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता था इसके बारे में, क्योंकि अदर स्टूडेंट्स वर प्रिपेयरिंग उस टाइम, जिस टाइम हम 11th-12th में मैं नया नया कॉमर्स पढ़ रही थी, देयर वर स्टूडेंट्स आई नो जो प्रिपेयर कर रहे थे उस टाइम। सो एनीवेज, लाइक आई वेंट अहेड विद इट, एंड फिर बीकॉम किया, सीए में घुसी, आर्टिकलशिप किया। सो इट वाज लाइक दैट, आई जस्ट वेंट विद द फ्लो, क्योंकि करना था, बट मुझे सीए करने का मन था। सो आई वाज लाइक मुझे करना तो है, एंजॉय करती थी। आई यूज्ड टू एंजॉय ऑडिटिंग, आई यूज्ड टू हेट टैक्स। सो ये कुछ चीजें थी फ्रॉम माय सीए फेज, बट हाँ, आई हैड टू लीव, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन था मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना था। एंड वो 3 years ऑफ आर्टिकलशिप जो मैंने किया है, वो मैंने किस तरह किया है मैं जानती हूँ, बिकॉज no offense to anyone who works for someone else, but मेरे लिए बहुत टाइम तक किसी के अंडर रह के काम करना, of course it's individual it's not choices, possible. yeah, हाँ, right. So वो चीज मैं उस टाइम ही समझ गई थी, बट घर पे नहीं बोला जा रहा था, क्योंकि सबके लिए वही था कि कुछ करना है मींस जॉब करना है। सो मुझे एसबीआई का भी एग्जाम भेजा गया, रिजल्ट निकला, मेरे घर पे नहीं बताया। सो ऐसी चीजें भी हुई है, क्योंकि मुझे वैसे मतलब 9 to 5 जॉब मेरे लिए नहीं है, वो मैं समझ गई थी। सो आई वांटेड टू गो फॉर फ्रीलांसिंग, बट उस टाइम बहुत ज्यादा ये इट वाज नॉट वेरी फेमस, वो भी नहीं पता था। बट वही था ट्रांजिशन कि मैं थोड़ा बहुत रिसर्च करने लगी, हाउ कैन आई स्टार्ट टीचिंग, हाउ कैन आई गो इनटू टीचिंग। एंड क्योंकि बहुत टाइम चला गया था, मैंने 3 years ग्रेजुएशन कर लिया, 3 years आर्टिकलशिप कर लिया, ऑलरेडी 6 years वर गॉन। सो अभी अगर मैं बीएड करूं, सो 2 years अगेन आई हैव टू गिव, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो कैसे मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि सीए भी मैं कर रही थी, तो भी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि मैं बीकॉम और सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी। So teaching was a constant आपका? Teaching was constant, and मैं वो करती भी थी। अगर ऐसे देखा जाए तो I started teaching in 2012, मतलब right after I completed my 12th, मैं घर पे ट्यूशन पढ़ाती थी, and then I joined one coaching, I still remember, मैंने एकदम नया नया ज्वाइन किया था कोचिंग, and वहाँ पे मैं गई to give the interview। तो पहले तो इट वाज लाइक कि आप बहुत छोटे हो, हाउ विल यू टीच? आई सेड मैं पढ़ा लूंगी, एंड क्या पढ़ाना है? इंग्लिश पढ़ाना है, बिकॉज आई हैड टू मच इंटरेस्ट इन इंग्लिश। मुझे लगता था कि अगर इंग्लिश में कुछ करती तो वुड हैव बीन बेटर, बट वही यू नो प्रेशर में यू कैन नॉट डिसाइड एट द राइट टाइम कि आपको क्या करना है, बिकॉज एवरीवन वाज डूइंग इंजीनियरिंग, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो चीज ना बहुत प्रेशर क्रिएट करता है। राइट, सो फाइनली यू केम टू द प्रोफेशन दैट यू आर डेस्टिन्ड टू। हाँ, आई स्टार्टेड इन 2012। अमेजिंग अमेजिंग। सो इंग्लिश में आपका इंटरेस्ट है, तो आपने भी रेनन मार्टिन पढ़ा होगा? अरे रेनन मार्टिन बहुत, मतलब आई थिंक मेरे एक भैया थे who is no more with us, so he introduced me to रेनन मार्टिन। उन्होंने कहा था कि वो बुक लेके रखो, एंड इट वाज लाइक लोग शायद 9th-10th में लेते हैं वो बुक जाके, मेरे पास वो बुक grade 5 में आई थी। ओह वाओ, तो तब से मतलब तब से आया मतलब मैं थोड़ा थोड़ा, अभी बहुत छोटी थी, उतना जरूरत नहीं पड़ता था, बट हाँ जिस टाइम जरूरत पड़ा है उस टाइम इट वाज पुराना हो गया होगा, लेकिन फटवट गया होगा, बट बहुत हेल्पफुल बुक है रेनन मार्टिन। दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, या ऑफ कोर्स। ओके श्वेता, यू आर अ टीचर, सो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट अबाउट टीचिंग? आपको टीचिंग में क्या अच्छा लगता है, और आपके स्कूल में
आपका बहुत सारे बच्चे लोग के साथ इंटरेक्शन होता होगा, कुछ एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस ऐसा आप शेयर कर सकते हो हमारे साथ? Teaching में it's like I'm not a full time, like हम्म I don't go to one school हम्म dedicatedly. हम्म I am a freelancer, हम्म so मैं 2-3 schools के साथ हूँ and बहुत students हैं, normal teacher से ज़्यादा बहुत ज़्यादा students हैं. I think if ऐसे देखा जाए तो शायद 1000 से ज़्यादा होंगे students. Memorable यही है कि to be honest, I never wanted to teach kids. ओके छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहती ओके थी मैं. But somehow मेरा जो मतलब first student, that student was in kindergarten. अच्छा मतलब recently की बात कर रही हूँ मैं, when I started teaching as a full time for me. मतलब हूँ freelancer but अभी teaching करती हूँ मैं full time. So जो मेरा सबसे first student थी, she was from USA and she was in kindergarten. तो मैं बहुत, जिस दिन डेमो था, I was very scared. I अच्छा was very scared and मैंने normally start किया क्योंकि it was a new job. I started with one of the very known websites. तो उनके साथ मुझे international teaching का मौका मिला. And I started with them and they gave me US Canada region. So the first आपने करियर टीचिंग का स्टार्ट किया बाहर. अमेजिंग. मतलब जो मैं पहले करती थी ट्यूशंस एंड ऑल, that was side thing. But professionally, But professionally, after like for just information, I have done TESOL and TEFL to come into this profession. क्या होता है ये? That is teaching English as second language. Okay. So as a TEFL holder, I am eligible to teach in any country where English is a second language. Okay. So ये एक सर्टिफिकेशन है जो कहीं भी चलता है. So this is the reason I could take teaching as full time profession. And वो start होने के बाद I joined one of the websites known as Turito. बहुत famous है and उनके साथ मुझे US clients, US के बच्चों के साथ काम करने का मौका मिला. So the second demo was with that kid and it was very nice and fortunate enough कि वो convert हो गया because मैंने उस बच्चे से बात करना start किया. She was in kindergarten. She just went into kindergarten. मतलब एकदम starting था kindergarten का. And वो जब मुझसे बात करने लगी ना, her parents were watching पीछे से. And they were, मुझे दिख रहा था because they were standing far behind, but the father called her mother and then they were watching. हो गया पूरा सेशन अराउंड 45 मिनट्स का. उसके बाद I asked her कि अपने पेरेंट्स को बुलाओ. So they came and they were like, वो आपने क्या किया है? What did you do? She never talks with anyone and she was talking with you as if वो आपको बहुत टाइम से जानती है. So वो चीज मुझे थोड़ा सा मतलब हिट किया और मुझे अच्छा लगा कि no, that means I can be good with kids. So that was a satisfaction kind of a moment. That was very satisfactory and सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद थोड़ा मुझ में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ. It was my second demo which got converted and उसके बाद I think most of the demos, I mean almost 60% demos got converted after that क्योंकि वो अचानक से कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था और अच्छा लगने लगा मुझे बच्चों को पढ़ाना. Then I joined a few schools offline. तो यहाँ पे भी मतलब बड़े क्लास से ज्यादा मैं छोटे क्लास लेती हूँ. बच्चे परेशान करते हैं? कम करते हैं. कम करते हैं क्योंकि थोड़ा सा मैं ऐसे बोलती हूँ ना उन्हें कि I'll get very angry. आँख दिखा देते हैं. आँख भी नहीं, मतलब I tell them that I'll leave the class and go. Do whatever you want, I'll leave the class and go. And then एक दूसरे को चुप करा देते हैं. तो श्वेता, सो यू हैव एन एक्सपर्टीज इन इंग्लिश. तो आप मैंने सुना आप स्पोकन इंग्लिश भी सिखाते हो. तो आप जो किड्स रहता है उनको कैसे आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो? माय क्वेश्चन इज
जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ, बहुत ही फनी एग्जांपल है, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। माय मॉम इज अ टीचर, तो उनका जो स्टूडेंट था, तो रिसाइटेशन मतलब पढ़ रहा था, मतलब कॉपी में रहता है ना, लिखा रहता है, स्पेलिंग्स लिखा रहता है, तो पढ़ रहा था। तो ही वाज लाइक PLAGUE, Like, राइट? तो उसने पढ़ा PLAGUE, प्लेगू, mm, DENGUE, डेंगू। तो mm. बेसिकली DENGUE पढ़ा था उसने, डेंगू, उसने हाँ. बताया प्लेगू। उसके बाद माय मॉम टोल्ड दैट किड कि नो, इट्स PLAGUE, प्लेग। Hmm. तो उसके बाद उसने क्या किया, PLAGUE प्लेग, DENGUE डेंग। Okay. आप समझ रहे मैं क्या हाँ पूछ हाँ, रहा हूँ? हाउ समझ डू गई. यू एक्सप्लेन द डिफरेंसेस? फॉर एग्जांपल, SO is so, Hmm. TO is to, Hmm. then why GO is go? समझ गए आप मेरी बात? तो इट्स अ वेरी फनी लैंग्वेज, तो इट माइट बी कंफ्यूजिंग समटाइम्स, राइट? वेरी कंफ्यूजिंग समटाइम्स, तो हम मुझे अभी भी समझ में नहीं आता है। तो बच्चों को ये चीज आप कैसे एक्सप्लेन करते हो? तो सबसे पहले तो हम फोनिक्स देखते हैं. हम्म तो फोनिक्स में क्या होता है ना, फोनिक्स में ऑल दीज थिंग्स गेट कवर्ड. हम्म यू नो कि GO मीन्स गो, TO मीन्स टू टू. सो लाइक उनको थोड़ा सा बताने का जो तरीका है, दैट नीड्स टू बी लाइक इन सच अ वे कि उनको समझ में भी आए एंड वो इतना प्रैक्टिस हो जाए. दिस इज व्हाट आई फॉलो कि मैं फॉर एग्जांपल डेंगू या प्लेग, ये वर्ड्स में उनको इतना वही प्रोनाउंसिएशन इतनी बार बुलवाऊंगी कि वो उनके टिप में आ जाएगा. ओके, सो इट्स लाइक आई मेक देम प्रैक्टिस टू मच, क्योंकि बच्चे हैं तो वो कंफ्यूजन होगा होगा ही. ही, हमें ही उसका कुछ होता है नहीं कर कंफ्यूजन, सकते, या उसका कुछ नहीं कर सकते. इवन लाइक हम बड़ों में भी कभी कभी बोलते बोलते वो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है. होता है। सो वो चीज ना, लाइक आप प्रैक्टिस करो, आप प्रैक्टिस करते रहो, तो वो ना ऐसे हो जाता है कि वो विद द फ्लो निकलता है. तो सेम हियर, मतलब प्रोनाउंसिएशन भी ना विद द फ्लो निकलता है. तब स्टार्टिंग में व्हेन अगर मैं अभी से 2-3 years पहले की बात करूंगी, तो आई वॉज नॉट सो फ्लुएंट. मतलब अभी अगर देखा जाए तो बिफोर 2018, जब मैं इतने लोगों से इंटरेक्ट नहीं करती थी, नॉर्मल इंटरेक्शन ठीक है, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, ऐसे चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट प्रोफेशनली या सामने बैठ के किसी से कोई प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन करना या नॉर्मल भी अगर, वो अटकता था. ओके, मेरा भी अटकता था, कभी कभी अभी भी अटकता है, स्लिप ऑफ टंग होता है. बट वो ना जितना प्रैक्टिस होता है ना, जितनी बात करते रहते हैं, जितना प्रैक्टिस होता रहता है, वो फ्लुएंट होता रहता है एंड वो फ्लो में आ जाता है. बेसिकली इट्स कॉल्ड फोनेटिक्स। हाँ, फोनेटिक्स, ओके, फोनेटिक्स से वी गेट द साउंड्स साउंड्स, एंड एवरीथिंग. सो सबसे बेसिक दैट वी टीच इज फोनेटिक्स. फोनेटिक्स, एंड फोनेटिक्स मतलब ऐसे है कि मैं जो बड़े हैं, पर अडल्ट्स का जब मैं क्लास लेती हूँ, उनको भी मैं फोनेटिक्स पढ़ाती हूँ. सो बेसिक फोनेटिक्स कवर करना इज वेरी नेसेसरी, नहीं तो वो प्रोनाउंसिएशन वो गलत निकल आएगा जाएगा, ही नहीं. तो जियो हो जाएगा। सो श्वेता, मैंने सुना है आप ड्रामा भी सिखाते हो बच्चों को, तो क्या क्या सिखाते हो, उसमें कैसा रहता है? ड्रामा में बेसिकली उसमें सबसे पहले स्पीच रहता है, आर्टिकुलेशन, प्रोनाउंसिएशन, और उनको छोटे छोटे डायलॉग्स दे के उनसे एक्टिविटीज कराना. तो बेसिकली कैसा स्क्रिप्ट रहता है या फिर कैसा, मतलब? स्क्रिप्ट नहीं रहता है. इट्स लाइक पहले तो उनको हम काफी चीजें इमेजिन करने को बोलते हैं, जस्ट टू टेक आउट द क्रिएटिविटी ऑफ देयर माइंड्स एंड हाउ दे इमेजिन थिंग्स. एंड उसी हिसाब से वी गिव हिम डिफरेंट सिचुएशंस कि suppose you are standing in a forest and you are very scared, how will you feel? So ये कुछ situations रहते हैं, so they act accordingly. And वो ना धीरे धीरे क्या होता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके वो खुद को एक्सप्रेस करते हैं. सो देन वी मूव टूवर्ड्स स्क्रिप्ट्स एंड डायलॉग्स. बच्चे बहुत ही
क्रिएटिव हो सकते कभी कभार, दे कैन बी वेरी बहुत क्रिएटिव बहुत समटाइम्स। तो कुछ ऐसा एक इंसिडेंट आपके साथ हुआ है मेमोरेबल? अम, एक नहीं है, बहुत है, और उसमें से मतलब कोई एक बताना इज वेरी डिफिकल्ट। बट हाँ, देयर हैज बीन टाइम्स जब काफी बार जब उनको कुछ सिचुएशन दिया, पहले लाइक मुझे लग रहा होगा कि शायद ना कर पाए, कैसे करेंगे, दे आर वेरी स्मॉल। बट फिर जो उनसे बाहर आता है, ऑल देयर इमोशंस, ऑल देयर एक्सप्रेशंस, वो कभी कभी बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग होता है फॉर मी एज अ टीचर, कि शायद इस लेवल पे मैंने भी नहीं सोचा था। ओके। तो होता है, मतलब कुछ कुछ बच्चे बहुत अपने एज से बहुत अच्छा कर लेते हैं। राइट। तो क्योंकि मुझे एक इंसिडेंट याद है, मेरे साथ हुआ था। मैं आई वाज वेरी स्मॉल, इतना भी स्मॉल नहीं, मतलब आई वाज इन फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड। तो बेसिकली सिमिलर काइंड ऑफ एन एक्टिविटी हुआ था जहाँ पे इट वाज काइंड ऑफ अ प्ले। तो रोल डिसाइडेड था, डायलॉग्स नहीं था, वी हैड टू बी क्रिएटिव। मेरा रोल था एक पढ़ाकू स्टूडेंट, चश्मा पहन कर पढ़ रहा है, ठीक है। डायलॉग कुछ नहीं याद है मुझे, कुछ याद नहीं है। बुलाया, टीचर ने बुलाया, मैं प्रिटेंड करूँ मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है, क्या बोलूँ क्या बोलूँ। अचानक से घूमा और मेरे मुंह से बिहारी निकल गया। क्या हुआ? आई डोंट नो व्हाई दैट हैपेंड। तो ऐसा कुछ फनी होता होगा आपके साथ? हाँ, होता है, होता है। क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई डायलॉग है एंड वो बच्चा भूल गया। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ना कुछ भी बोल के कवर अप कर लेते हैं, हाँ। तो वो चीजें ना बहुत फनी भी लगती हैं, एंड फिर इट्स लाइक वो मोमेंट बन जाते हैं कि यार राइट, मेमोरेबल ये हो जाते बोला हैं। उसने। राइट राइट। तो अमेजिंग। ऐसे होता है, लाइक दे एड अप अ लॉट बाय देमसेल्व्स, एंड जो कि हमें चाहिए एज टीचर्स कि वो अपना क्रिएटिव साइड बाहर रखे। सो एज टीचर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे। जैसे कि आप इंग्लिश पढ़ाते हो, स्पोकन इंग्लिश पढ़ाते हो, ड्रामा सिखाते हो बच्चों को, एंड पूरा टाइम बच्चों के साथ सराउंडेड रहते हो, तो उस टाइम पे तो आपका पूरा एनर्जी रहता होगा, बिकॉज यू आर इन सच एन एक्साइटेड मूड, है ना। घर आते टाइम तो पूरा ड्रेन्ड हो, ड्रेन्ड आउट हो जाते होगे ना? बिल्कुल ओके। पूरी तरह, मतलब मैं तो ड्रेन्ड हो जाती हूँ। हम्म अभी आई डोंट नो अबाउट अदर्स, हम्म बट मुझे वो क्लासरूम तक हम्म मुझ में एनर्जी रहता है, एंड भर के एनर्जी रहता है। बट हाँ, ड्रेन तो हो जाती हूँ, आफ्टर ऑल आई एम आल्सो ह्यूमन राइट बीइंग। राइट। एंड क्या होता है ना, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स और 45 स्टूडेंट्स, वो धीरे धीरे डाउन होता ही रहता है एनर्जी, आप जितनी भी कोशिश कर ले। वो एनर्जी यू हैव टू मेंटेन, यू हैव टू मेंटेन, नहीं तो एक बार अगर मैं ढीली पड़ गई तो वो स्टूडेंट्स ढीले पड़ जाएंगे। राइट बट एज राइट। सून एज आई कम आउट ऑफ द स्कूल ना, आई एम लाइक ओह, अभी जस्ट आई नीड माय डॉग्स एंड आई नीड माय बेड। Wonderful, amazing, amazing. Okay, so coming to the most exciting part for me at least, chocolates. आपका एक अलग वेंचर भी है जहाँ पे आप चॉकलेट बनाते हो, लाइक काइंड ऑफ एन अ बिजनेस दैट यू मेक चॉकलेट्स, यू सेल चॉकलेट्स। सो उसके बारे में थोड़ा बताइए, मतलब कैसे स्टार्ट हुआ ये चीज? चॉकलेट्स का स्टार्ट करना वाज नॉट एक्चुअली एनीथिंग विच आई डिसाइडेड, या वो जस्ट हो गया। मतलब मुझे बेकिंग और ये सब थोड़ा सा, चॉकलेट्स बेकिंग एंड थोड़ी अच्छी अच्छी डिफरेंट डिफरेंट डिशेस घर पे बनाने का शौक था, एंड ये शौक मुझे हुआ है अराउंड 8th 9th स्टैंडर्ड से। ओह वाओ। सो उस टाइम से मैं थोड़े बहुत बेकिंग वगैरह करती थी घर पे, जैसे कोई रेसिपी देख लिया वो बना लिया, एंड वो चीजें ना मैं बीच बीच में करती थी तो मुझे याद भी रहता था, एंड आई हैड अ स्मॉल डायरी जिसमें मैं लिख भी लेती थी ओह रेसिपीज। ओके। तो चॉकलेट्स भी वैसे ही है, चॉकलेट्स बनाती थी मैं घर पे, कुकीज, चॉकलेट्स एंड ऑल। सो इट वाज ड्यूरिंग द लॉकडाउन जब मुझे सी ऑफिस ज्वाइन करने का मन नहीं कर रहा था, एंड वैसे भी लॉकडाउन था तो कुछ कर नहीं सकते थे। राइट। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग रिलेटेड टू इंग्लिश, बट वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा लेजिट वेबसाइट्स नहीं है, या उस टाइम नहीं थे, अभी तो आ गए हैं काफी इंडिया में, बट उस टाइम नहीं थे। इट वाज इन 2019 2020। तो उससे पहले, लाइक जस्ट बिफोर द लॉकडाउन, आई गॉट टू नो अबाउट
वन ऑफ द कोर्सेज एंड मुझे वो करने का बहुत मन था एंड मुझे एक्चुअली बाहर जाने का मन था आउट ऑफ इंडिया. सो मुझे बहुत मन था बट समहाउ नहीं, मैं किसी से डिस्कस मैं नहीं कर पाई उस टाइम. एंड देन दिस लॉकडाउन हैपेंड, एवरीथिंग गॉट क्लोज एंड तो फिर मैं इंडिया में ही देखती रही कि कुछ मिल जाए मुझे रिलेटेड टू दिस टीचिंग कि मैं डायरेक्टली टीचिंग में आ सकूं. सो उस टाइम पे ना आई डिडंट हैव एनीथिंग टू डू एंड लॉकडाउन था, अच्छा भी नहीं लग रहा था. सो एक दिन ऐसे ही हुआ कि कुछ तो फेसबुक स्क्रॉल करते करते आई सॉ एक हॉबी क्लास टाइप का. तो वो वेबिनार था एंड फिर मैंने वो ज्वाइन किया. मुझे याद भी नहीं है एग्जैक्टली किसका था. तो शी वाज टेलिंग समथिंग अबाउट बेकिंग एंड शी वाज मेकिंग सम केक्स एंड वो बेकिंग कर रही थी एंड देन उसी का वो लाइव कर रही थी. तो मुझे भी फिर लगा कि कर सकते हैं कुछ ऐसा. देन आई टोल्ड माय हस्बैंड अबाउट इट कि चॉकलेट्स रिलेटेड कुछ कर सकते हैं क्या ऑनलाइन, बिकॉज तब ना धीरे धीरे थोड़ा ये लॉजिस्टिक्स स्टार्ट हो रहा था वापस से. एंड हमारा एक और बिजनेस भी है प्लांट्स का. सो बीच में बंद था एंड देन फिर धीरे धीरे जब वो लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, थोड़े कोरियर्स आने जाने लगे तो वो पार्सल्स जाते थे. तो तब आई थॉट कि लेट्स सी, लेट्स ट्राई. तो आपका ब्रांड का नाम बता दीजिए एक बार. इट्स कैंडी वर्ल्ड. कैंडी एज इन कैंडी वाला कैंडी वर्ल्ड. कैंडी वर्ल्ड. बट द नेम इज केप्ट ऑन माय एल्डर डॉटर्स नेम. शी इज अ शिट्जू एंड उसके नाम पे रखा है. उसका नाम कैंडी है. कैंडी. ओके ओके. कैंडी वर्ल्ड. कैंडी वर्ल्ड. सो व्हाटएवर वी लाइक उस टाइम तो कैंडी वाज लाइक उसका नाम होना चाहिए हर चीज में. अभी कैंडी के साथ कीवी भी है. सो वी हैव 2 डॉग्स, बोथ आर शिट्जूस एंड तो कैंडी के नाम पे रखा था कैंडी वर्ल्ड. सो लॉकडाउन में आपका बचपन का जो बेकिंग और कुकिंग का वो था वो इग्नाइट हो गया. वंडरफुल. लॉकडाउन में मैंने भी बहुत सारे अमेजिंग डिशेस बनाए. एक बार क्या हुआ था, मैंने एक्सीडेंटली आइसक्रीम बना लिया. हाउ आई वांटेड टू मेक समथिंग अ ड्रिंक, चॉकलेट ड्रिंक. तो बेसिकली मैंने क्रीम लिया, कैडबरी मेल्ट किया, मिक्स किया, जो थिक ड्रिंक टाइप बन गया था, रह गया, फ्रिज में डाल दिया. अगले दिन जब निकला इट वाज प्रॉपर चॉकलेट आइसक्रीम. तब मुझे पता चला चॉकलेट आइसक्रीम इज मेड फ्रॉम क्रीम. आई डिस्कवर्ड दैट रेसिपी. सो वैसे बहुत सारे मतलब नए नए चीजें हम लोगों ने डिस्कवर किया था, बट आपने it's very impressive that you made it into a complete business. So before like starting Candy World, I did a small course as well. Just to get, क्योंकि वो हॉबी की तरह करती थी मैं. बट मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था कि मतलब कैसे if I'm thinking it for a business, I need to know the insights of it. So मैंने एक छोटा सा कोर्स किया था चॉकलेट मेकिंग का एंड देन आई लॉन्च्ड कैंडी वर्ल्ड. थोड़े बहुत चॉकलेट्स बनाए एंड देन वी स्टार्ट शिपिंग ऑल अक्रॉस इंडिया एंड बहुत अच्छा रिस्पांस आया. Of course आएगा ही रिस्पांस. It's chocolates. It's chocolates. People are crazy about chocolates. So and since we live in Pune, तो यहाँ का वेदर भी इतना अच्छा है कि मुझे फ्रिज की भी उतनी यूज नहीं करनी पड़ती थी एंड वो अपने आप बाहर ही सेट हो जाता था. तो वो पैकिंग एंड ऑल सब कुछ मैंने वो कोर्स के दौरान सीखा एंड देन आई स्टार्टेड. फिर धीरे धीरे on like special request of a few friends dry cakes भी बनाना स्टार्ट किया. So dry cakes और chocolates, मतलब ऐसे बर्थडे केक्स वगैरह नहीं बनाती थी. ड्राई केक्स क्योंकि बहुत टाइम तक रहते हैं, 1-2 months तक रहते हैं. सो ड्राई केक्स और चॉकलेट. सो ड्राई केक्स क्योंकि इजीली कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, शिप हो सकता है इजीली. एंड वो ना जो मैं बनाती हूँ उसमें कोई भी प्रेजर्वेटिव्स नहीं डालती. बट इट इज मेड इन सच अ प्रोसेस जो अराउंड 2 months आप आराम से फ्रिज में रख के खा सकते हैं. It is preserved naturally. So I started with plum cakes. प्लम केक से स्टार्ट किया था. प्लम केक्स वैसे भी बहुत टाइम तक स्टोर कर सकते हैं. सो वैसे ही धीरे धीरे थोड़े फ्लेवर्स लेके स्टार्ट किया. बहुत वैरायटी नहीं किया है, लिमिटेड वैरायटी है
बट क्योंकि अभी तक भी आई एम डूइंग एवरीथिंग सिंगल हैंडेडली, या सो यू आर मैनेजिंग लॉट ऑफ थिंग्स ना, या मतलब इट्स रियली सरप्राइजिंग आप कैसे मैनेज कर लेते हो। सो वेयर डू यू फाइंड द इंस्पिरेशन, वेयर डू यू फाइंड द एनर्जी टू मैनेज? टीचिंग आप कर लेते हो, उसके बाद घर पे भी आप कुकिंग वगैरह करते हो, केक्स बनाते हो, चॉकलेट, तो हाउ डू यू मैनेज टू बैलेंस ऑल दोस सो थिंग्स? मेन थिंग इज इफ यू लाइक द वर्क यू आर डूइंग, हम्म, सो वो हो जाता है. ऑफ So कोर्स। firstly, I'm working for myself. हम्म, I don't have a boss on my head. जहाँ पे बहुत ज्यादा बॉस का छड़ी रहता है वहां से मैं थोड़ा सा निकल लेती हूँ. राइट राइट। सो आई डू एवरीथिंग अपने टाइम पे. हम्म, जब मुझे बहुत मन होता है करने का, आई डोंट पुश माई सेल्फ अलॉट. ऑफ अगर कोर्स। मुझे नहीं मन कर रहा है मैं नहीं करूंगी. अगर मुझे ऐसा भी हुआ है कि इफ आई एम वर्किंग विद अ कंपनी आई डोंट लाइक द एनवायरनमेंट, मैं वहां से निकल जाती हूँ. हाँ। सो दिस इज द थिंग कि मैं स्ट्रेस, बिकॉज मैं स्ट्रेस आउट बहुत जल्दी होती हूँ. तो व्हाट आई ट्राई टू डू इज कि जो मुझे अच्छा लग रहा है, जैसे अच्छा लग रहा है मैं वैसे करूंगी. पीस ऑफ माइंड जरूरी है। पीस ऑफ माइंड जरूरी है. अगर मुझे रात 1 बजे उठ के केक बनाना है, मैं 1 बजे केक बनाऊंगी. दिस इज समथिंग दैट आई जेन्युइनली डू. राइट। मैं बेकिंग रात में करती हूँ. ओके। तब इट्स लाइक एकदम आसपास सन्नाटा है, मैं अपना काम करके अंदर ओवन में डाल दिया एंड देन आई टेक अ क्विक नैप. तब तक 1 घंटे में मेरा केक बन गया. सो दैट इज लाइक अ गुड वे टू डू अकॉर्डिंग टू मी. एंड वैसे ही चॉकलेट्स है. सो मैं अपने टाइम को वैसे ही करती हूँ कि मुझे अगर मन हो रहा है तो मैं ये करूंगी. ऑब्वियसली व्हेन आई हैव अ वर्क मैं वो करके खत्म करूंगी अपने उस टाइम पे. बट हाँ, जब मुझे मन होगा तब करूंगी. सो अमेजिंग। दिस इज हाउ आई मैनेज माय वर्क. दैट्स रियली इंस्पायरिंग टू नो एंड मतलब सीखने के लिए भी बहुत चीज़ है, लाइक जो चीज़ पसंद है उसको करो। पीस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट। एंड नॉट, इट्स नॉट लाइक दैट कि आप अपना काम करोगे तो स्ट्रेस नहीं होगे. बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, बिकॉज काम का प्रेशर भी होता है. एंड इवन एज फ्रीलांसर्स हम स्टिल कहीं ना कहीं क्लाइंट्स के साथ जा रहे हैं, या इफ आई एम वर्किंग विद अनदर कंपनी वहां का प्रेशर है. सो देर आर अ फ्यू थिंग्स आई मेंटेन, एंड वो लोगों को अच्छा लगे या बुरा, आई ट्राई टू मेंटेन दैट. आई ट्राई टू बी एक्सट्रीमली प्रोफेशनल. इफ आई हैव टू be somewhere at 8 o'clock, I'll be there at 8 o'clock. अगर मुझे लग रहा है कि क्लास नहीं है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट अपना टाइम मेंटेन करती हूँ. देन इफ आई एम सपोज टू लीव एट 2 o'clock, मैं एग्जैक्ट 2 o'clock निकल जाऊंगी. I will never take that extra 5 minutes just to show off to someone else कि oh see I am working here, या मैं बहुत अच्छी एम्प्लॉय हूँ. मैं यहाँ पे बैठी रहूंगी 2:30 बजे तक. मैं ये नहीं करती हूँ. देन आई प्रोफेशनलिज्म फॉर मी इज लाइक आप, मैं अवेलेबल हूँ, आपने जो टाइम दिया है मैं उस टाइम पे अवेलेबल हूँ. Right. अवेलेबल हूँ. मैं अवेलेबल नहीं हूँ, माई नो मीन्स अ नो. राइट। ड्यूरिंग द टाइम यू आर अवेलेबल आप यू डिलीवर। Exactly. So whatever time I have committed to you, I'll be there at राइट your place. राइट। उसके आगे उसके पीछे it's none of your business. And ये चीज थोड़ा सा बहुत लोगों को रूड लगता है, बट मैंने देखा है अगर मैं ये चीज मेंटेन नहीं करूंगी, मैं एज अ फ्रीलांसर आई कैन नॉट सर्वाइव, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. नाउ पीपल विल थिंक कि क्यों कर रहे हो उतना काम. मेरा मर्जी है, मेरी मर्जी, मेरा पीस ऑफ माइंड है। मेरा पीस ऑफ माइंड है, मुझे करना है, मैं Right. कर रही हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है. Of course. मैं एक आई कांट स्टिक टू वन वर्क. मैं बोर हो जाती हूँ बहुत जल्दी. दिस इज अ प्रॉब्लम विथ मी. इसीलिए आई ट्राई टू हैव अ लॉट ऑफ थिंग कि मुझे इंटरेस्ट भी बना रहे एंड मुझे अच्छा भी लगे. सो दैट्स व्हाई आई ट्राई टू मेंटेन दैट प्रोफेशनलिज्म कि ठीक है ये मेरा टाइम है, मैं इस टाइम पे ये काम करूंगी. सो दिस इज वन थिंग दैट आई हैव ट्राइड टू मेंटेन since I have started freelancing. Wonderful, wonderful. Now coming back to chocolates, आपने चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री देखा है? हाँ. सो देयर इज अ कैरेक्टर कॉल्ड विली वोंका जो उसका ओनर होता है. तो वहां पे ना बहुत ही अलग अलग टाइप के रेसिपीज बनाते हैं, जैसे कि आपका मैंने एक देखा था
देयर इज अ चॉकलेट व्हिच हैज द फ्लेवर ऑफ एवरी फूड इन द वर्ल्ड, ठीक है, उसको खा के कोई भूखा नहीं रह सकता, ठीक है। इफ यू वांट पिज्जा चाहिए, आपको पिज्जा फ्लेवर मिलेगा। इफ यू वांट आपको बिरयानी चाहिए, बिरयानी का टेस्ट मिलेगा। देन देयर इज अ सोडा जो पी के आप हवा में उड़ सकते हो। तो बेसिकली अलग अलग टाइप के मतलब वेराइटीज के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज व्हेन यू मेक चॉकलेट्स, डू यू गो क्रिएटिव विद इट या फिर आप कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हो? स्टार्टिंग में भी एंड बीच बीच में भी आई कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स, सो आई कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स, न्यू फ्लेवर्स, कुछ मिक्स एंड मैच कर दिया एंड ट्राई कराती हूँ अपने हस्बैंड से। so करती हूँ, मतलब इट्स लाइक इफ समथिंग वर्क्स आउट वेल तो वो फिर लॉन्च कर देती हूँ एंड आई पुट इट इन माय कैटलॉग। अगर डजंट वर्क आउट वेल, वो चला गया आपके वो हस्बैंड चला के गया पेट में। हस्बैंड के पेट में एंड देन द चैप्टर क्लोज। कुछ ऐसा एक फ्लेवर, ऐसा एक रेसिपी जो आपका बहुत ही सुपर हिट हुआ है? 2-3 है एक्चुअली। देयर इज अ पान चॉकलेट, पान चॉकलेट, पान चॉकलेट, देन अनदर वन इज अ डेट्स चॉकलेट। सो होल डेट रहता है, अंदर कुछ नट्स रहते हैं एंड देन इट्स कवर्ड विद चॉकलेट, सो दैट इज लव्ड अ लॉट, लाइक उसके बहुत ऑर्डर्स आते हैं। एंड देन वी हैव अ ट्रुफल काइंड ऑफ, वो भी इट्स ऑल विदाउट शुगर एंड वो भी डेट्स एंड नट्स से ही बना रहता है, सो दैट इज आल्सो। सो श्वेता, वेरी क्विकली ब्रीफली आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हो अ सिंपल चॉकलेट मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, उसमें क्या यूज होता है, कैसे एक चॉकलेट बनाया जाता है, बेसिक प्रोसेस बता सकते हो? बेसिक फॉर लाइक द वे आई मेक, क्योंकि उसमें सब कुछ कोको बटर एंड ऑल वो मैं घर पे ही बना के करती हूँ, लाइक कोको बटर एंड कोको पाउडर से। बट लाइक क्विक चॉकलेट मेकिंग अगर मैं बताऊं तो इन द शॉप्स, यू नो, जहाँ पे भी बेकिंग का या चॉकलेट्स का मटेरियल मिलता है वहाँ पे चॉकलेट कंपाउंड स्लैब्स अवेलेबल है। सो वो किसी को भी घर पे बनाने की जरूरत नहीं है, लाइक वी मेक एट होम। बट अगर क्विक और लाइक ऐसे ही घर पे बनाना हो, सो चॉकलेट स्लैब्स आर अवेलेबल। 2 टाइप के चॉकलेट स्लैब्स होते हैं, सो वन इज अ कंपाउंड चॉकलेट स्लैब, कंपाउंड स्लैब, एंड अनदर वन इज अ चॉकलेट। लाइक 2 अलग अलग चीजें होती है। कंपाउंड में देयर इज पाम ऑयल, एंड जो एक्चुअल चॉकलेट स्लैब होता है इट्स अ बिट एक्सपेंसिव, बट वो प्योर चॉकलेट होता है, पूरा चॉकलेट का प्योर चॉकलेट होता है एंड वो मेल्ट जल्दी होता है कंपाउंड से। ओके, सो आप उनमें से कोई भी ले सकते हो एंड देन यू टेस्ट गुड, बोथ टेस्ट गुड। रियल चॉकलेट ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा, थोड़ा नहीं, एक्चुअली बहुत टेस्टी होता है। सो आप कोई भी कंपाउंड ले लो, उसको आप मेल्ट करो, सेट इट इन अ मोल्ड एंड योर हैंडमेड चॉकलेट इज रेडी। ओके, उसमें नट्स डाल दो, कुछ भी ड्राई फ्रूट्स डाल दो एंड योर चॉकलेट इज रेडी। सो यू नीड अ चॉकलेट स्लैब, मोल्ड, एंड अगर उसमें कुछ भी टॉपिंग वगैरह डालना हो मेल्ट करो एंड बनाओ। मेल्ट करने का ऑल्दो थोड़ा सा तरीका होता है, वो जल ना जाए चॉकलेट, so you have to keep it in a double boiler. So there are a lot of methods that we as like normally we follow is the double boiler method. So एक नीचे पानी गर्म होता रहता है and then we keep one vessel ऊपर, उसमें चॉकलेट रखते हैं। तो डायरेक्टली हीट में नहीं डालते, तो जल जाता है डायरेक्टली। हाँ, डायरेक्टली हीट में जलने का डर है एंड वो जस्ट जो नीचे पानी बॉईल होता रहता है उसके स्टीम से वो ऊपर वाला वेसल गरम होके एंड द चॉकलेट मेल्ट्स। ओके, सो दैट इज द सेफेस्ट वे आई फॉलो। राइट, वंडरफुल। तो चॉकलेट ड्यूरिंग हीटिंग कभी कभार मैंने ट्राई किया हुआ है बॉयलर से हीट करना, तो कभी कभार हार्ड हो जाता है। हार्ड हो जाता है, तो व्हाई इज दैट? वो ज्यादा हीट हो गया है क्या? वो थोड़ा ज्यादा हीट होने पे भी होता है। इट्स लाइक आप ना वो जान जैसे जल जाए कुछ भी तो वो हार्ड हो जाता है, एक लेयर जम जाता है। एग्जैक्टली सेम वो चॉकलेट के साथ होता है। तो वो ज्यादा हीट होगा ना तो वो हार्ड हो जाएगा और उसका टेस्ट भी मतलब एकदम अच्छा नहीं रहता, थोड़ा सा बिटर हो जाता है, थोड़ा खराब भी हो जाता है। Got it. चलो viewers, if you want to make chocolates at home, simple chocolate at home, you can try this basic recipe out. So आपके पास unusual request भी आता होगा चॉकलेट बनाने का, अलग अलग फ्लेवर का, तो आपके पास ऐसा कुछ इंसिडेंट है जहाँ पे
कस्टमर ने बताया नहीं मुझे ऐसा टाइप का फ्लेवर का चॉकलेट चाहिए, तो ऐसा कुछ इंसिडेंट आपको आया है कभी? फ्लेवर तो नहीं, बट एक वेडिंग का ऑर्डर था हम्म, एंड जिसमें ब्राइड एंड ग्रूम का एक नाम कॉमन निकाल के ओके। वो नाम लिखना था हर एक चॉकलेट के ऊपर। ऐसा कभी नहीं आया कि मुझे गुटका फ्लेवर का चॉकलेट चाहिए या नहीं फिर नहीं नहीं? नहीं, अभी तक नहीं आया। आई डोंट नो आगे क्या होगा, बट अभी तक नहीं आया। राइट। सिर्फ वो नाम के रिक्वेस्ट का आया था, कि उन लोगों ने एक कॉमन नाम दिया हम्म। था, तो वो जस्ट चॉकलेट्स पे लिखना था। हम्म। तो फिर व्हाट आई डिड वाज कि अलग अलग चॉकलेट्स बना के उसमें एक एक अल्फाबेट्स। आपने खुद से लिखा या स्टाम्प? नहीं खुद से। नहीं, आई हैव अ मोल्ड, ओके। जो मोल्ड से सारे अमेजिंग। नेम्स बना के अमेजिंग। एंड देन वो चॉकलेट पे डाला था। तो इट वाज स्टार्टिंग में थोड़ा सा, इट वाज अ बिट, तब समझ में नहीं आ रहा था हम्म। कैसे करूं, बिकॉज इट वाज मोर देन 100 हम्म। बॉक्सेस ओके। का ऑर्डर। सो बट फिर यू थोड़ा फाउंड अ सा सॉल्यूशन। सोचा एंड देन धीरे धीरे इट वर्कड आउट एंड इट अमेजिंग। वर्कड आउट वेल। यू फाउंड अ सॉल्यूशन फॉर आई दैट। फाउंड। ओके श्वेता, मैंने सुना है आप, जैसे आपने भी बताया और मैंने सुना भी है, आप और बहुत अच्छा गाते हो। तो कैन यू शो फ्यू लाइंस फॉर अस, सिंग अ फ्यू लाइंस फॉर अस एंड फॉर आवर व्यूअर्स? बहुत अच्छा तो नहीं, प्रैक्टिस भी नहीं करती मैं। नहीं, मैंने सुना है आप बहुत अच्छा गाते हो। मतलब घर पे है, हम्म। घर पे एवरीवन इज अ सिंगर, सो वो चीज आ गया है। थोड़ा सा ट्राई करती हूँ। एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, एक बार देख लीजिए, जलने को है तैयार हम, परवाना बना दीजिए, एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, एक बार देख लीजिए। दैट वाज रियली नाइस। ये कौन सा गाना था? ये अभी रिसेंट हीरा मंडी ओह ओके। मूवी का। दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस, वंडरफुल वॉइस। तो आप मतलब आप रियाज के लिए कब टाइम मिलता है आपको? नहीं करती हूँ रियाज, इट हैज बीन इयर्स कि, और मैंने सिंगिंग का किया भी नहीं है कुछ। ओके। सो इट्स जस्ट लाइक 2-3 इयर्स का मैंने किया है। एंड बीच बीच में क्योंकि मौसी मम्मी लोगों के साथ प्रैक्टिस होता हम्म। रहता था, बट डेडिकेटेडली रियाज एंड गाना तो दिस इज जस्ट काइंड ऑफ अ हॉबी आपके लिए। हॉबी ही हॉबी है, व्हिच विच यू इज आर फॉलोइंग रियली वेल। करते रहिए। एंड एनीथिंग यू वांट टू से टू आवर व्यूअर्स, कुछ एडवाइस, जैसे कि आपके लाइफ में बहुत सारे करियर चॉइसेस आए थे, आपने जैसे बताया आपने बहुत सारे चेंजेस भी किए हुए थे, तो फाइनली नाउ यू आर सेटल्ड एंड डूइंग रियली गुड। एंड यू आपने बहुत सारे अच्छी चीज़ें भी बताई, जैसे पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ एडवाइस, जो मतलब कंफ्यूज है इनिशियल स्टेजेस में से, आप 9-10 में कंफ्यूज थे, तो उनके लिए कुछ एडवाइस? सी कंफ्यूजन एंड नहीं समझ में आना क्या करना है, इट्स वेरी नॉर्मल एंड इट्स ओके। दिस इज व्हाट आई फील। मतलब अगर इस टाइम भी मैं देखूँ तो 3-4 इयर्स पहले तक भी मुझे नहीं पता था दैट व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू डू, या मुझे क्या करना चाहिए। मुझे बस इतना समझ में आ रहा था कि मेरा मन नहीं लग रहा है एंड आई डोंट वांट टू डू अ 9 to 5 जॉब। आई वांट टू डू समथिंग जो नॉर्मली लोग शायद नहीं करते हैं, नहीं जानते, मुझे भी नहीं पता है। और मुझे वो पता करने में एंड टू गेट इनटू दिस मुझे बहुत टाइम लगा है। इट हैज बीन ऑलमोस्ट 3 इयर्स जर्नी कि मैंने फिगर आउट किया कि मैं क्या कर सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ। एंड इट्स फाइन इफ यू फेल, इट्स फाइन इफ समथिंग डजंट वर्क आउट। बट क्या होता है ना, हम लोग कई बार
पेरेंट्स हो या रिलेटिव्स हो या फ्रेंड्स हो, सबका इन्फ्लुएंस से ना वी चूज द रॉन्ग वे. राइट. यू नो, हमारे पेरेंट्स बोलेंगे ये सही है, ये करो, कोई और बोलेगा ये सही है, वो करो. सो इन चीजों में ना कहीं वी गेट लॉस्ट. एंड इट्स फाइन अगर आपको लेट हो रहा है कुछ करने में, अगर आपको अपना एग्जैक्टली आपको कहाँ पे खुशी हो रही है वो चीज ढूंढने में आपको टाइम लग रहा है, आप टाइम लो, बट एटलीस्ट कोशिश करो. यू नेवर नो इफ इट वर्क्स आउट. अगर नहीं वर्कआउट करता, इट विल बी a good experience. It will be a learning experience. It will be a learning experience anyways. और अगर वर्कआउट कर जाता है तो बहुत अच्छी बात well है. and good. बट रिस्क लेना, एंड आई नो इट्स अ बिट डिफिकल्ट कि अपना काम छोड़ के, अपना जॉब छोड़ के करियर चेंज इज अ बिग रिस्क. बट आप तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा आपको जब तक आप वो रिस्क लोगे ही नहीं, करोगे नहीं, तब तक नहीं समझ में. हाँ. सो इट्स लाइक आप कोशिश करो. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सब कुछ छोड़ दो एंड देन यू ट्राई. नहीं, डोंट डू दैट. गो वेरी स्लो. अगर आपको ट्रांजिशन करना है ना, मैंने शायद बहुत जल्दबाजी की है, बट इफ यू हैव समथिंग कीप डूइंग इट, बट स्लोली आप ट्रांजिट करो. डोंट लीव इट एंड ट्राई टू गेट इनटू व्हाट यू लाइक. ट्राई टू फॉलो योर पैशन एंड योर इंट्यूशन. मैनिफेस्ट करो. आई रियली बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, एंड बहुत पुराने टाइम से नहीं, शायद 2-3 सालों से आई एम फॉलोइंग. सो इट वर्क्स. एंड मैनिफेस्टेशन तभी काम करेगा इफ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, और आपको खुद पे बिलीव रहेगा. मन से बिलीव होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद पे विश्वास करो. जो कि टाइम लगता है, मुझे भी बहुत टाइम लगा है, बट डू इट. कुछ तो होगा. राइट. इट्स लाइक दैट. और अभी हमारे व्यूअर्स के लिए अगर किसी को आपके पान वाले चॉकलेट मंगाना हो या फिर ऑर्डर करना हो या फिर डेट्स वाले चॉकलेट, तो हाउ कैन दे कनेक्ट विद यू? I have a page on Instagram, Candy World. Do follow. Candy World Official. Do follow that. And Facebook पे भी है Candy World. So आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मतलब मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं, मुझे भी फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू सो मच श्वेता. बहुत ही मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज, स्पोकन इंग्लिश, अबाउट योर लाइफ, द स्ट्रगल्स दैट यू फेस, एंड सबसे इम्पोर्टेंट मेरा फेवरेट चॉकलेट्स. So thank you so much for joining with us today, and I hope you enjoyed sharing your experiences. Yes, I really enjoyed a lot. आपका singing भी बहुत ही अच्छा लगा. And गला बैठा है although. No, it was really amazing. Thank you so much. Thank you for calling me. Thank you for having me here. Pleasure. So thank you so much for watching this video. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा and you learned something from this video. अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो give this a thumbs up, एक like कर दीजिए. Share it with your friends and family so that they can enjoy this video as well and they can learn something new from this interview. And like I always say, your subscription is my motivation. आपका subscription से ही मुझे motivation मिलता है to make new and interesting videos and interviews like this. So click on the subscribe button that's right over somewhere over here and click on the bell button beside it, and I'll see you in the next.